سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت کوشش کرتے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ اسٹوڈنٹ ایج میں ہیں تو اپنی ایجوکیشن میں پاس ہو جائیں، سکسیس ہو جائیں، یونیورسٹی تک، کالج یونیورسٹی تک بہت کوششیں کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، بلکہ اپنے والدین سے، مشائخ سے، اساتذہ سے دعائیں بھی کراتی ہیں۔ مجھے بہت سارے مرید اور مرید بیویاں اور آگے ان کے بچے دعاؤں کے لیے کہ جی دعا فرمائیں بچہ یا بچی پاس ہو جائے۔ آپ دور نہ جائیں میرے اپنے بچے جب امتحان آ جاتے ہیں تو بہت ساری دعائیں، بابا یہ دعا کر، بابا میں نے۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے امتحانوں میں پاس ہو جائیں، ہم آگے بڑھ جائیں، ہم کامیابی کی طرف چلے جائیں، انٹرویو ہے پاس ہو جائیں، اور بھی کوئی ڈیل ہے وہ تھرو ہو جائے، تو بہت کوشش کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں آپ کو ایک پیٹرن بتا دیتا ہوں، ایک نسخہ بتا دیتا ہوں۔ 3 چیزیں کیا کریں، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی کامیابی یقینی آپ کی ہے۔ کامیابی آپ کی ہے۔ جو آپ نے انٹرویو دیا، جس جاب کے لیے آپ جا رہے تھے، وہ جاب آپ کو ملی یا نہیں ملی، کامیابی آپ کی ہے۔ جو ٹیسٹ، جو ایگزام، جو امتحان آپ دے رہے تھے، آپ اس میں بہت اچھے نمبروں کے، بڑے اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہوئے یا نہیں ہوئے، کامیابی آپ کی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سب سے پہلا یہ سوال یہ آئے گا کہ بھئی میں ٹیسٹ میں پاس ہو گیا پھر تو کامیابی میری ہے، یہ تو بات سمجھ آ گئی مجھے، پر میں کامیاب نہیں ہوا، اس میں کامیابی کہاں پہ ہے؟ نوکری مجھے نہیں ملی، اس میں کامیابی کہاں پر ہے؟ ہاں، وہ جو نسخہ میں بتانے لگا ہوں اس کو سن لیں، پھر آپ کو اس کی حکمتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور اگر کسی کو کم عمری کی وجہ سے نہ سمجھ آئیں تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اس بات کو ایسے ہی لینا جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ وقت، حالات، معاملات، زندگی آپ کو یہ بات سمجھا دے گی کہ بھئی جو آپ مانگ رہے تھے وہ نہیں ملا، تو پھر آپ کی کامیابی کہاں پر تھی؟ تھوڑا سا اشارتاً میں بھی ابھی بتا دوں گا۔ سب سے پہلی بات آپ نے کیا کرنی ہے؟ سب سے اولین بات، پہلی بات جو فاؤنڈیشن سٹون ہے، جو مغز ہے آپ کے عمل کا، وہ ہے اللہ پہ توکل کرنا۔ سب سے پہلی بات اللہ پہ توکل کرنا، ہمیشہ اس پر بھروسہ کرنا، اسی پر ایمان رکھنا، اسی پر یقین کرنا، اسی پر توکل کرنا۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنے لگیں اللہ پر بھروسہ کر کے کریں، یقیناً کامیابی آپ کی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
उसी पर भरोसा कीजिएगा, तवक्कल कीजिएगा उस पर, यकीन कीजिएगा उस पर, ईमान उस पर ही रखना है। ये नहीं सोचना पीर साहब से दुआ कराई थी, पीर साहब ने मेरा ये काम कर दिया, नहीं। पीर साहब अल्लाह के बंदे हैं, पीर साहब से दुआ कराई थी, अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया, अल्लाह ने मुझ पर करम कर दिया, अल्लाह ने मेरा मामला ठीक कर दिया। मैंने अपने वालिदैन से दुआ कराई थी तो मेरे वालिदैन ने मेरा ये मामला ठीक कर दिया, नहीं, अल्लाह पे भरोसा किया था। वालिदैन मेरे हमदर्द हैं, मेरे खैर ख्वाह हैं, नेक लोग हैं, उनसे दुआ कराई थी, अल्लाह ने करम कर दिया। भरोसा अल्लाह पर, तवक्कल अल्लाह पर, लिहाजा अल्लाह पे तवक्कल करना, ये पहली बात है। दूसरी बात, जो भी आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो भी, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो कोई प्रोफेशनल एजुकेशन है, चाहे आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या भाई मैं जॉब ही कर रहा हूं लेकिन इसमें आगे तरक्कियां हैं, जो भी करें बड़ी मेहनत के साथ करें। एजुकेशन हासिल करें, बड़ी मेहनत के साथ हासिल करें, पढ़ें अपना नसाब, अपना कोर्स, अपनी किताबें, अपना हर चीज बड़ी मेहनत के साथ, बहुत मेहनत करनी है हर काम में। जिसमें आप चाहते हैं इसमें तरक्की हो जाए, जिसमें आप चाहते हैं इसमें कामयाब हो जाए, जिसमें चाहते हैं आप पास हो जाए, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, एड़ी चोटी का जोर लगा के मेहनत करनी है। पहली बात क्या बताई थी? तवक्कल करना है। दूसरी बात, मेहनत करनी है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। मैं अपने पीर साहब को कहूं कि जी हजरत मेरे लिए दुआ फरमा दें, मेरा फलां फलां एग्जाम है, या मेरी डिग्री के एग्जाम है, या मेरी किसी जॉब का इंटरव्यू है, आप दुआ फरमा दें। मुर्शिद पाक तो दुआ फरमाएंगे। मैं अपने वालिदैन से कहता हूँ दुआ फरमा दें, वो तो दुआ फरमाएंगे। लेकिन क्या बात सिर्फ दुआओं से ही बन जाती है? मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है? बाबा नहीं, ऐसे नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, सारी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, सारे कोर्स करने पड़ेंगे, सारी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी, मेहनत बहुत करनी है, अल्लाह पे भरोसा करना है, और अपना जो एफर्ट है, अपनी जो कोशिश है, अपनी जो मेहनत है, वो बहुत ज्यादा करनी है, बड़े मुखलिस होके करनी है, बड़ी दिलजोई से करनी है, पूरी जांफिशानी से करनी है, मेहनत करनी है। अच्छा भाई, मैंने अल्लाह पे भरोसा भी किया, बार बार उसको पुकारा भी, उसे कहा कि या रब्बुल इज्जत, मैं तो तेरे पे भरोसा कर रहा हूं, तुझ पे भरोसा करके आगे बढ़ रहा हूं, तो कामयाबी देना। भाई मैंने भरोसा तो बड़ा किया, मेहनत भी बड़ी की, अब क्या करूं? अब अगली बात आ जाती है, वो है दुआ। अब यानी जिसको हम पहले अव्वलीन रखते हैं ना, वो तीसरी बात है। हम सबसे पहले पीर साहब से दुआ कराते हैं, हम सबसे पहले अपने वालिदैन से दुआ कराते हैं, ये दुआ करें वो मेरा फलां काम मैं बस करने लगा हूं, वो हो जाए, वो आखिरी काम है। पहले क्या करना है? अल्लाह पे भरोसा करना है। दूसरा क्या करना है? मेहनत करनी है उस काम के लिए, उस टेस्ट के लिए, उस कोर्स के लिए कोशिश करनी है, बहुत मेहनत करनी है, सीखना है उसको, समझना है उसको, पढ़ना है उसको, स्टडी करना है, दिन रात एक करना पड़े कर दें। फिर तीसरी बात है कि हाँ, अब मैं अपने शेख से, अपने हादी से, अपने असातिज़ा से, अपने वालिदैन से, अपने बुजुर्गों से, जिनसे भी, जिनको मैं मोहब्बत करता हूँ, जिनका मैं अदब करता हूँ, जिनको मैं अल्लाह वाला जानता हूँ, उनसे दुआ भी कराएं। ये तीन चीजें हैं, तवक्कल अल्लाह, मेहनत और दुआ। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपकी होगी, 100% कामयाबी आपकी होगी,
100%. हाँ, अल्लाह अपनी हिकमतों के मुताबिक आपको कामयाबी देगा। वो बड़ा बेनियाज है, वो अता करने पे आजे सारी दुनिया को अता कर दे, उसके खजाने में कमी कोई नहीं है। वो ना अता करे तो सारी दुनिया को इनकार कर दे, भाग जाओ, कुछ नहीं देता मैं तुम्हें, तो उसके शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देता अपनी हिकमतों के हिसाब से है, किसी को उसी वक्त नवाज देता है, किसी को बेतहाशा नवाज देता है, किसी को थोड़ा थोड़ा करके देता है, किसी को थोड़ा सा वक्त गुजारने के बाद अता फरमाता है, और किसी को कहता है ठहर जा, ये तेरे लिए बेहतर नहीं है, इससे बेहतर देता हूं तुझे, जो तू मांग रहा है वो तेरे हक में बेहतर नहीं है, इससे बेहतर से नवाजता हूं तुझे, सब्र कर, पेशेंस रख। और आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान कि जो हम अल्लाह की बारगाह से मांगते हैं दुआओं की शक्ल में, जो दुआएं कबूल नहीं हुई, जो चीज मांगी थी वो हमें नहीं मिली, किसी भी हिकमत की वजह से, वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी, या मेरी वो ख्वाहिश नाजायज थी, या वो कोई कोई और रीजन था, मैंने दुआ मांगी, बड़े सिद्के दिल से मांगी, अल्लाह की बारगाह में नहीं मिली, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान, जिसका मफहूम यह है कि अगर तुम्हें दिखा दिया जाए ना जो दुआएं तुम्हारी कबूल नहीं हुई उसके इवज तुम्हें क्या मिलने वाला है, तो तुम बेख्तियार कह उठोगे कि या अल्लाह आज के बाद कोई मेरी दुआ कबूल ना करना, मुझे सारा ही अजर सवाब और हिस्सा आखिरत में इस दुआ के इवज में अता फरमाना। तो कामयाब ना हुए आप। भाई जो आप मांग रहे थे अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह ने उससे बेहतर आपके लिए प्लान किया हुआ था, वो आपको अता कर दिया, कामयाब ना हुए आप तो कामयाब हुए। आप छोटी चीज मांग रहे थे अल्लाह ने बड़ी अता फरमा दी, आप थोड़ी मांग रहे थे अल्लाह ने ज्यादा अता फरमा दी, आप अपनी अक्ल दाने से कोई गलत चीज मांग रहे थे अल्लाह ने अपनी हिकमत से आला चीज अता फरमा दी, कामयाब ना हुए आप। आपको आपकी दुआओं का, आपकी कोशिश का, मेहनत का हिस्सा आपको महशर में जाके मिला, कब्र में जाके मिला, कामयाब ना हुए आप। यकीनन आप कामयाब हुए, बल्कि आप ही कामयाब हुए। भाई अल्लाह पाक ने उसी वक्त आपकी दुआ ग्रांट कर दी, आप कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आपने टेस्ट दिया, पास हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। भैया आपने कोई डिग्री के लिए एग्जाम दिए हुए थे, प्रोजेक्ट बनाए हुए थे, किए, डिग्री मिल गई, कामयाब हो गए। 100% कामयाबी आपकी यकीनी है। करना क्या है? तवक्कल अल्लाह। करना क्या है? बहुत मेहनत करनी है उस काम के लिए जिसके लिए आप कामयाबी चाहते हैं। फिर करना क्या है? सारा कुछ करके, तवक्कल भी कर लिया, मेहनत भी कर ली, फिर भी मान नहीं करना कि नहीं नहीं मैंने बड़ी मेहनत की, अब तो मैं जनाब जीत जाऊंगा, मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो निकल जाऊंगा। और नहीं बाबा नहीं, फिर भी अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह, जो अक्लो दानिश, जो हिम्मत, ताकत, तौफीक तूने मुझे दी थी, मैंने सर्फ कर दिया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, कोशिश की है, फिर भी कोई कमी कोताही रह गई हो, माफ फरमाते हुए अल्लाह तू अपने करम से कामयाबी अता फरमाना, अपने फजल से कामयाबी अता फरमाना, तू इसमें खैर और बरकत रख देना, फिर अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। अच्छा, एक और बात आपको विजुलाइज करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, एक और अंदाज, एक और क्या कहना चाहिए, व्यू। भाई गौर करें इस बात पर कि एक क्लास में 20-25 स्टूडेंट्स हैं, या एक बैच में 20-25 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सबने डिग्री की, मास्टर डिग्री की, एमबीबीएस किया, कोई भी एक ले लें चले। वो 20-25 लोग जो निकले हैं यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके हाथ में, क्या वो सब के सब एक जैसा फ्यूचर पाएंगे? नहीं।
اس میں بہت سارے ہوں گے جو فلاپ ہو جائیں گے، چند ایک ہوں گے جو اچھی پوسٹ یا اچھی پوزیشن پر چلے جائیں گے، اور وہ جو بہت سارے فلاپ ہوئے وہ بہت سارے ان میں ایسے بھی ہوں گے جو ایون اپنا پروفیشن چھوڑ کے کسی اور کام میں لگ گئے ہوں گے۔ اسی طرح ان میں سے چند لوگ، گنے چنے چند لوگ ہوں گے جنہوں نے اسی ڈگری کو آگے ماسٹر ڈگری کی، اسی میں آگے اور اسپیشلائز کیا، اسی پروفیشن میں رہ کے کامیابی حاصل کی، اور وہ بلندیوں کو چھوتے ہوئے چلے گئے۔ چند ایک اکا دکا، بھائی سب نے ڈگری تو ایک ہی کی تھی، پھر بہت سارے فلاپ کیوں ہو گئے؟ سب کو ہی کامیاب ہونا چاہیے تھا، بلندیوں پہ ہونا چاہیے تھا، ایسا تو نہیں ہوا۔ بھائی کچھ لوگوں نے تو ڈگری کی، مثال کے طور پر بھائی آرکیٹیکٹ کی، اور کر وہ بزنس رہے ہیں، پڑھا تو انہوں نے MBBS تھا، لیکن وہ جا کے جناب ریسٹوریشن بزنس میں پڑ گئے، وہ جناب جا کے میں بھی کسی ٹرانسپورٹیشن بزنس میں چلے گئے، جاب میں چلے گئے، کسی اور فیلڈ میں کسی اور کام میں لگ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ کسی گورنمنٹ جاب میں چلے گئے، پروفیشن ہی ٹوٹلی چینج کر دیا انہوں نے اپنا۔ ایسا ہوتا ہے، آپ میری بات سے متفق ہوں گے کہ ایک ہی بیچ میں ایک ہی سال میں ڈگری حاصل کرنے والے بہت سارے ناکام ہو گئے، چند ریزنیبل حد تک کامیاب ہوئے، اور ان میں سے اکا دکا الا ماشاء اللہ کوئی ایک دو کامیابی کی بلندیاں چھوتے ہوئے نکل گئے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ بھائی آپ کو جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اللہ کے بھروسے، آپ کی سخت محنت اور دعاؤں کے نتیجے میں ملنا ہے۔ اب وہ پوزیشن کون سی ہوگی آپ خود ہی دیکھ لیں، وہ بلندیوں کی وسعتوں کو چھونے والی بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک ایوریج کامیاب انسان کی بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بالکل باٹم پر جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں گے یا بڑے ترلے لے کر اپنا گزر بسر کر رہے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ لیکن کامیابی یقینی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، جنہوں نے بہت محنت کی اور اللہ کی بارگاہ سے دعا کی، وہ کامیاب ہیں۔ ایک اور آخری بات ایسے ہی ضمناً، بس تھوڑی سی روشنی ڈال کے آگے چلتے ہیں، پھر ذکر کریں گے، دعا کریں گے۔ بھئی یہ تو ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں میں بھی جو اللہ والے ہیں، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ان کی بات کر رہے ہیں۔ کبھی ہاں بھی وہ توکل کریں گے اللہ پر، وہ محنت کریں گے، وہ دعا کریں گے، اللہ انہیں یقیناً کامیابی دے گا۔ اور جو نان مسلم ہیں، جو غیر مسلم ہیں، اچھا مسلمان ہی ہیں لیکن وہ نہ تو نماز پڑھتے ہیں، بے نمازی ہیں، نہ ہی وہ کوئی بہت زیادہ دیندار ہیں، نہ ہی انہیں اتنا بڑا فلسفہ آتا ہے کہ اچھا بھی مجھے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہوگا۔ نہیں جناب، مجھے اپنی محنت پر بڑا بھروسہ ہے۔ وہ اپنے اوپر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی محنت پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے باپ دادا کی دولت پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھی چلو جہاں نہیں بھی کامیابی ہوگی پیسے دے کے کامیابی لے لیں گے۔ ایسے لوگوں کا کیا، جنہوں نے نہ تو اللہ پر بھروسہ کیا، ہاں محنتی ہوں گے، چلے یہ کہہ لیں، غیر مسلم بہت محنتی لوگ ہوتے ہیں، گوروں میں، کالوں میں، ایشین میں، مڈل ایسٹ میں، فار ایسٹ میں بہت محنتی لوگ بھی ہیں، بڑے کامیاب ہیں وہ۔ ان کا کیا؟ ہاں ان کے لیے بھی کامیابیاں ہیں، انہوں نے جو محنت کی، رازق تو اللہ ہی ہے، وہ مسلمانوں کا بھی رازق ہے، وہ غیر مسلموں کا بھی رازق ہے، وہ انسانوں کا، وہ تو جانوروں کا بھی رازق ہے۔ جنہوں نے محنت کی، اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ انہیں بھی کامیابیاں دیتا ہے، لیکن آگے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، آگے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے چلتے ہیں، اللہ انہیں کامیابی دیتا ہے، دنیا میں بھی، مڈ ایج میں بھی،
आखिरी उम्र में भी, कब्र में भी, हशर में भी। क्यों? अल्लाह कहते हैं इसने मुझ पर भरोसा किया था। यानी अल्लाह को इस बात पर बड़ा रिस्पॉन्स देना होता है कि ये मेरे भरोसे चलता रहा सारी जिंदगी। इसने इम्तिहान दिया, स्कूल लाइफ गुजारी, मेरे भरोसे गुजारी। इसने कॉलेज लाइफ गुजारी, मुझ पे भरोसा करके इम्तिहान देता रहा। इसने यूनिवर्सिटी क्लियर की, मुझ पे भरोसा किया। इसने जॉब में जहां भी कहीं जॉब की, मुझ पे भरोसा करके की, मेरी रजा खुशी के लिए की, मुझ पर तवक्कल किया। इसलिए अजर व सवाब आखिरत में बहुत है। और फिर जिसने मेहनत की, अल्लाह किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, चाहे वो मुसलमान करे चाहे वो गैर मुस्लिम करे। अल्लाह देता है, मेहनत का जरूर फल देता है। बल्कि फरमान है उसका कि राई के दाने के बराबर भी किसी ने मेहनत की होगी ना, ज़ाया नहीं की जाएगी, उसको हिस्सा दिया जाएगा। हाँ, जो गैर मुस्लिम है आखिरत में, कब्र में, हशर में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। यहीं पे उनका हिसाब बराबर कर दिया जाता है। और जो मुसलमान हैं वो मेहनत तो करते हैं, अल्लाह उन्हें हिस्सा भी देता है, लेकिन उनका वो जो फेथ और बिलीव है, जो तवक्कल है, उसका अजर व सवाब बहुत ज्यादा है। उनकी जो बार बार मांगी गई दुआएं हैं, उनका बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, दुनिया में भी है, कब्र में भी, हशर में भी। अल्लाह उसमें भी बहुत कुछ अता फरमाता है। इसलिए आज की तालीमात ये हैं कि एक, अल्लाह पे भरोसा करना, दूसरा बहुत ज्यादा मेहनत करना, तीसरा सब कुछ करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि या अल्लाह मैंने अपनी तरफ से मेहनत की। बच्चे हैं भाई, मैंने बच्चों को पालने पोसने में बहुत मेहनत की, करके फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के या अल्लाह मेरा काम मेहनत से इनको समझाना सिखाना था, हदायत और तौफीक मेरे पास नहीं है, या अल्लाह तूने मेरे बच्चों को हदायत और तौफीक देनी है। सारा कुछ मेहनत की, कर बनाया, सारा कारोबार सेटअप किया, कर लिया, या अल्लाह अब इसको कामयाबी की तरफ लेके जाना मालिक, ये तेरा काम है। मेरा काम था अपने एफर्ट, अपना टैलेंट, अपने स्किल्स, अपनी हर चीज इसमें लगाना, इन्वेस्टमेंट, हर चीज जो तूने मुझे दे रखी है मैंने खर्च की, मैंने सर्व किया, अब कामयाब करना तेरा काम है। घर बना लिया, या अल्लाह इसमें खुशियां देना तेरा काम है। इस घर में इत्तेफाक सलूक हो, ये तेरी बारगाह से है। तू मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे, ये तेरी बारगाह से है। तो इसलिए दुआ करते रहना बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को दुनिया में नज़ा के वक़्त में, कब्र में और हशर में कामयाबी और कामरानी से नवाजे। व आखिरु दवाअना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अला या रब्बे जुल जलाल या मालिकुल कुद्दूस। अल्लाह तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया, अल्लाह अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। अल्लाह तेरी और तेरे महबूब की बातें की, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह तेरी हम्दो सना की, तेरे महबूब की तारीफ की, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये हल्का जिक्र, ये महफिल जिक्र हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा, हमें दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ के शर से अल्लाह तेरी पनाह मांगते हैं, हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। अल्लाह अपना फ़क्र अता फरमा, अपना तवक्कल अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। जो कुछ भी तूने आज तक अता फरमाया हम तेरे शुक्र गुजार हैं। अल्लाह हमारा शुक्र कबूल फरमाते हुए मजीद नेमतों, रहमतों, बरकतों से नवाज दे कि हर दम तेरा शुक्र अदा करते रहें। जो बच्चे इम्तिहानों में पास हुए अल्लाह तेरा शुक्र है, जो अपनी जॉबों में, इंटरव्यू में पास हो गए अल्लाह तेरा शुक्र है, हम शुक्र गुजार हैं।
अल्लाह जो इमिग्रेशन के मामलात में निकल गए, कामयाब हो गए, अल्लाह हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा दे, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा दे, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा दे। या अल्लाह जो बेरोजगार हैं उन्हें रिज़्क़े हलाल और तैयब अता फरमा दे, जिनके काम कारोबार हैं लेकिन वो परेशान हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से मदद फरमाते हुए उनके कारोबार में, बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में, आमदनी में, रोजगार में, रिज़्क़ में खैर और बरकत अता फरमा, खैर कसीर और रिज़्क़े कसीर अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलादें अता फरमा, जिनकी औलादें हैं लेकिन वो अपनी औलादों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनकी औलादों को हदायत वाला बना दे, अल्लाह उनकी औलादों को उनकी आंखों की ठंडक बना दे, उनके लिए सदका जारिया बना दे, अल्लाह उनकी औलादों को कामयाबी अता फरमा, अल्लाह उनकी औलादों को अपने वालिदैन का फरमा बरदार, अपने वालिदैन का अदब करने वाला, एहतराम करने वाला, इज्जत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, खिदमत करने वाला बना दे। या अल्लाह हम सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा, हम सब को दीन और दुनिया की भलाई अता फरमा, नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र व फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, अपना फक्र, अपना तवक्कल, अपनी मार्फत अता फरमा। अल्लाह हमें सब्र और शुक्र अता फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह अपना लुत्फ व करम अता फरमा। मुसलमान मुल्कों, इलाकों, सरहदों के लिए दुआ गो हैं, या अल्लाह अपना खैर वाला मामला फरमा दे। बिलखुसूस उम्मत मुसलमा और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह अपना करम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी गलतियां खताएं माफ फरमाते हुए हमें दीन हक पर इस्तकामत अता फरमा। जो सगीरा कबीरा गुनाह हमारे आबाओजदाद से, हमसे, हमारी औलादों से हो गए, मुआफ फरमा दे। आइंदा के लिए भी तौबा करते हैं, जो होंगे या अल्लाह अपने करम से माफ फरमा देना। या अल्लाह हम पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा, खुशहाली, खैर व बरकत अता फरमा, तस्लीम व रजा अता फरमा, इत्मीनाने कल्ब, इत्मीनाने ज़हन और इत्मीनाने रूह अता फरमा। अल्लाह जो भी मेरे साथियों ने हाथ उठाए बैठे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं हैं, नेक आरजुएं हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से पूरी फरमा दे। जो बाद में ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आमीन कह रहे हैं, या अल्लाह उनकी भी दुआओं को, उनकी हाजतों को कबूल फरमाते हुए या अल्लाह उन पर भी अपना लुत्फ व करम अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए अता फरमा। खसूसन बिलखसूस हम रिजवान साहब के लिए, उनकी मिसेज के लिए, उनके बच्चों के लिए दुआ गो हैं, या अल्लाह अपना लुत्फ व करम अता फरमाते हुए उनको खैर, खुशहाली, कामयाबी, अच्छी सेहत और घराने में खुश नवीदी अता फरमा। उमर बाबा के लिए, उमर बाबा के बच्चों के लिए, ख्वाजा बाबा के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह तेरी अमान, तेरी पनाह में सब बच्चों को देते हैं, अपनी अमान में रखना, हर किस्म के शर से उन्हें महफूज रखना। या अल्लाह मैं अपने तमाम साथियों के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने इस महफिल का खास तौर से एहतमाम करते हैं, जिस तरह से भी सलाहियत, वक्त, पैसे खर्च करते हैं, या अल्लाह सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। तेरी रजा के लिए करते हैं, तेरे महबूब की मोहब्बत और इश्क में करते हैं, अपना लुत्फ व करम अता फरमा, अपना खास करम अता। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरा अदब करते हैं, जो मेरी खिदमत करते हैं, मेरा फिक्र करते हैं, बीमार हुआ तो मुझे खैरियत पूछ रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, वॉइस मैसेजेस आ रहे हैं, या अल्लाह सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। जो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, खिदमत करते हैं, या अल्लाह सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। बिलाल साहब ने, शजी साहब ने, अजीम साहब ने, रिजवान साहब ने जिस तरह की भी खिदमत की, इंडिया से तोहफे लेकर आए, हुसैन बाबा हैं, उम्रे पे गए थे, उम्रे से तोहफे लेके आए, या अल्लाह सबकी खिदमात को कबूल फरमा। मैंने कबूल किया, अल्लाह तू अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अता फरमा। अल्लाह वो मुझे तेरा बंदा जानकर मेरी खिदमत करते हैं, अल्लाह तू उनकी खिदमात का अजर दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अरफा व आला करके अता फरमा।
उनके माल में, जान में, औलाद में, इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमा। सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। उमर बाबा, उनकी वालदा, उनकी बहन जो उम्रे के लिए नियत किए हुए हैं, या अल्लाह उनके लिए भी बेहतरी और आसानी पैदा फरमा। और भी जो साथी उम्रे के लिए आना चाहते हैं, या अल्लाह जो आ चुके, ज़ियारत कर चुके, हाजिरी लगवा चुके, उनकी भी कबूल फरमा। जो आना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन असबाब अता फरमा। हम सबको अपनी और अपने प्यारे महबूब की बारगाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह की बार बार बाअदब हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह, जिन्होंने हज किए हज कबूल फरमा, जिन्होंने उम्रे किए उम्रे कबूल फरमा। और अल्लाह हम सबको दीन इस्लाम पर इस्तकामत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जब वक्त मौत आए तो कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना। इलाही अंत मकसूदना वरिदा का मतलूबना आतीना मोहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफातिक। आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें हिम्मत दी, ताकत दी, तौफीक दी कि हमने कुछ वक्त तेरी बारगाह में, तेरे जिक्र में, तेरी और तेरे महबूब की बातें करने और सुनने में वक्त गुजारा। कबूल फरमाना। और ऐसी पाक संगतें, ऐसी पाक महफिलें, ऐसे पाक हल्के हमेशा अता फरमाते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम साथियों को आज की महफिल बहुत मुबारक हो। आइंदा सैटरडे फिर इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।